So guys, this is the result that we have got. That is overall 85. It's listening 87. I was not expecting score in speaking just because of my microphone. So like I didn't use actually. So that's okay. Like if you are speaking with microphone, obviously you should get more because we'll check like basically कि क्या चीज था हमारा क्या गलत रहा कि 5 नंबर भी क्यों कटे और या फिर 85 भी क्यों आए तो we'll check it out. So let's go on to that one by one. आंसर्स भी मेरे लाइक इसमें सुनेंगे हम. So I've got 88 in the first one. A university is not a business. More precisely, a not-for-profit college or university is significantly different than a for-profit business. A university has no owners and it is a public trust. A business has a single overriding goal, the maximize. So in this, like I have got 88, in which the fluency was 89, as you can check, right? Pronunciation was good. I was speaking into the microphone. मतलब मैं बाहर अपनी आवाज नहीं निकाल रहा था. I was just speaking. Microphone के अंदर मेरी आवाज जाए proper. I was loud enough. Content was 90. So देखते हैं किसमें कम रहा है. किसी में अगर हमारा 78, yes 70 से कम रहा है. जैसे 82 है, थोड़ा कम है. Let's check. The ability to work in a team is one that is prized by employers and educationalists. It is often requested in job advertisements and displayed on CVs. When employers list their most important skills for promotion, 86% of people list team working skills. These days, the willingness and ability to work with a group. So can you tell me like I will forget your name here for some moments, don't mind. But Rajinder ji, can you tell me like where I'm taking the pause? कहाँ पे रुक रहा हूँ basically मैं like एक बार थोड़ा hint दीजिए. Yes. राजेंद्र जी आवाज आ रही है हमारे ऑडियो? हाँ सुन रहा हूँ। डियर आई एम आस्किंग लाइक मैं कहाँ पे पॉज ले रहा हूँ. अगर आपने थोड़ा चेक किया हो उसको, यहाँ से आपको स्ट्रेटजी पता लग जाएगी रीड अलाउड्स की कि व्हाई आई एम गेटिंग बिल्कुल ओवर 80. ओके बताओ. स्टार्ट करें दोबारा से प्लीज. The ability to work in a team is one that is prized by employers and educationalists. It is often requested in job advertisements and displayed on CVs. When employers list their most important skills for promotion, 86% of people list team working skills. These days, the willingness and ability to work with a group of हाँ. आप तो एक फुल स्टॉप पर रुक रहे हैं. हम्म. स्किल्स के बाद जैसे है वर्किंग स्किल्स, हम्म. एक सीवीएस डिस्प्लेड ऑन सीवीएस सीवीज देखो. सीवीएस. हम्म. बस इसके बाद तो दीज डेज पर आपने स्टॉप कर दिया था. हम्म. So basically, if you एक check, we are getting a pause एजुकेशनलिस्ट. on full stops, जी जी बिल्कुल. right? तो यही strategy है dear, like आपको full stop पे pause लेना है, otherwise there is no need to stop in between. Just keep on speaking जितना हो सके, like आप बोलते रहें. तो full stop जब आएगा then only stop. So that is the way to do the read louds basically, right? So let's go on to the next one. We got like 83, 78. Yes, this one. Let's check कि क्यों कम आए हैं इसमें. Listen carefully now, every one of you. आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी. आवाज कट रही है. Okay, my data is used. Just basically let me connect to another phone. It's like I got 78 in this. I took Scientific studies show that by age 3, there is a gap in brain development between kids who read aloud and those who do not, and children from low income families are disproportionately impacted by this gap. Making sure all parents know the importance of reading aloud to their children is critical to closing the achievement gap. as you can see, like there is no pause I guess I've taken in between, but that's okay. Like it might be due to no mic that I hadn't at that time. जो मेरे पास mic नहीं था तो उसकी वजह से भी हो सकता है, but that's okay, like it's accepted. Just go on to the next one. एक बार देखो ना, अगर आपको मेरा स्पीकिंग में Scientific studies show that by age 3 there is a gap. then it's 78 over here. And if I say like अगर मेरे यहाँ 78 आ रहा है तो यहाँ मेरा 85 कैसे आ सकता है स्पीकिंग में? सोचने वाली बात है ना.
तो बेसिकली क्या होता है कि एवरेज स्कोर दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि एआई अगर इसका है तो वो ये परफेक्ट मार्क्स ऐसे ही देगा। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करके आओगे तो इतने भी आ सकते हैं, नो डाउट, इससे ज्यादा भी आएंगे। बट एक्चुअल में मैं जो है वो लेके चलता हूँ 5 से 7 नंबर कम। लाइक अगर मेरा यहाँ पे है तो एग्जाम में मैं 79 या 80 बोल सकता हूँ। अपना मेरा आज का स्कोर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, होने को 90 भी हो सकता है। वो मेरी मेहनत के ऊपर और उस टाइम के मेरे जो टास्क हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार किस्मत भी डिपेंड करती है कि ऐसे टास्क या ऐसे क्वेश्चन, जैसे आज 2 एसेज आ गए मेरे पास, सो इट्स नॉट नॉर्मल टू गेट द टू एसेज इन राइटिंग सेक्शन। लाइक बेसिकली यू गेट वन ओनली, राइट? सो दैट माइट हैपन विद यू। 20% लक जो काम करता है। तो आपका मैक्सिमम स्कोर ज्यादा होना चाहिए जितना हो। लाइक यहाँ पे 78 या 82 है, 83, तो एवरेज लाइक आई गॉट दिस वन, इसमें थोड़ा कम है। लेट्स चेक। The sad truth is that happy sounds are infectious. Now comes research that at least partly explains why. It was published this week in the Journal of Neuroscience. A British research team played various sounds, including laughter, to people who are having their brains scanned by a functional MRI machine. All the sounds activated the premotor cortical region of the brain, an area preparing facial muscles to move. ये सिर्फ मेरा लाइक जो है थोड़ा आवाज जो है एको कर रहा है, उसकी वजह से शायद कम दे रहा है। माइक में उसको और अच्छा देगा आपको जब आप करेंगे, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स चेक द रिपीट सेंटेंसेस। Please sign in your name here if you want to join the social club. Here is the sentence. सो दैट वाज गुड, बट स्टिल लाइक आई मेंटेन्ड द फ्लुएंसी। मेन चीज आपको फ्लुएंसी मेंटेन करना है इन केस ऑफ स्पीकिंग। सपोज अगर आप फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको जो भी स्कोर है वो नहीं मिलेगा, और स्टार्टिंग से आना चाहिए। हालांकि इसने मेरा उठाया है यहाँ पे 82% कंटेंट, बट आई विल आस्क यू गाइस टू स्टार्टिंग से आपका बिल्कुल भी गलत ना हो, राइट? मेरा तो चल जाएगा, आप लोग का नहीं चलेगा। You can only choose one subject. इसमें प्रोनाउंसिएशन में लाइक थोड़ा वही माइक की वजह से भी हो सकता है। यू नो लाइक आई एम जस्टिफाइंग माई आंसर्स, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं ना, वहाँ पे एग्जाम खराब हो जाता है। तो मेरा माइक खराब हो गया था, मेरे साथ वाले बोलने लग गए थे, तो मास्टर भी कर सकता है थोड़ा सा ऐसा, तो डोंट माइंड। बट आई एम जस्टिफाइंग माई आंसर्स लिटरली, लाइक आई एम टेलिंग यू गाइस कि कैसे They were स्कोर struggling कम to हो pay their सकता है। fees last. क्योंकि अब मेरा, अब देखो सारा सही है, बट स्टिल आई गॉट लाइक फ्लुएंसी में 76, दैट्स नॉट गुड एज कम्पेयर टू दैट वन। They were struggling to pay their fees last year. आई डोंट नो लाइक फ्लुएंसी में कम क्यों दिया है, बट दैट्स ओके। आपको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ। 80, 73, it was less. इसमें select भी कर सकते हैं लास्ट में Scientists कुछ are अगर still unsure while सेंटेंस। I'm sorry. इसमें रिपीट सेंटेंस है ना ये। जी जी। इसमें अगर कंटेंट उठा रहे हैं तो अगर लास्ट में कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, फिलर ऐड कर सकते हैं। Yes, of course, if you have seen my video. Are you on my YouTube channel? ओके। नहीं, YouTube पे हैं आप मेरे? नहीं, यूट्यूब में नहीं हूँ मैं। मैं आपका लेक का भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप YouTube पे जाके एक ना टेक्निक डाली हुई, टेक्निक नंबर 4, और ऑलरेडी एक और ठीक है। वीडियो भी है स्टार्टिंग में, या वही वीडियो सेंड कर दूंगा। ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, सो दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट। एंड उसमें वो टेक्निक ओके। आप देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है उसमें कि कैसे ऐड करना है। ठीक है, वो ओके फिलर्स ऐड सर। कर सकते हैं, ओके। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई विल सजेस्ट यू कि स्टार्टिंग से चलने और लास्ट में ऐड कर दें कुछ वर्ड्स, फिर भी बेटर है। बट ये ना हो कि स्टार्टिंग से ही आपने मिस कर दिया उसको। जैसे दिस वन वाज ओके गुड, आई सर। गॉट 89 इन दिस। languages are an essential part of the school curriculum. अब देखो मेरी स्पीड इस वाले में और इस वाले में, देखो स्पीड देखते हैं थोड़ी सी। Scientists are still unsure while we'll need to sleep. स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, बट क्लैरिटी इसमें ज्यादा है। Languages are an essential part of the school curriculum. और एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। पता है, कंप्यूटर को ज्यादा तेज नहीं चाहिए आपकी स्पीड, कंप्यूटर को ज्यादा स्लो नहीं चाहिए, मॉडरेट स्पीड चाहिए उसको। इसमें ये हमारा लास्ट और थोड़ा लेंथियर सेंटेंस था, तो लेट्स चेक व्हाट आई डिड इन दैट, बट स्टिल आई गॉट 71। When the demand of the course approached, the university department took an approach. Here is the sentence which was about the university and their demands. डू यू सी दैट कि कैसे बोला है मैंने और ये कितना बोला गया। बट आपने ये चीज नोट की होगी कि मैं बीच में रुका नहीं, मैं बोलता गया, राइट? सो दैट्स अ गुड अप्रोच, लाइक नॉट टू टेक एनी पॉज, बिकॉज इट इज जस्ट वन सेंटेंस गाइस, राइट? अगर ये ज्यादा सेंटेंसेस होंगे
तब आपका पॉज लेना जायज है कि हाँ कह सकते हैं डिस्क्राइब इमेज है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो बीच में हल्का बहुत पॉज आ सकता है। इसी वजह से वो कहते हैं कि अवॉइड 3 सेकंड पोज। अगर आप 3 सेकंड से ज्यादा का पोज लेते हैं तो वो पर्टिकुलर टास्क जीरो हो जाती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। बट फॉर द मोमेंट व्हाट आई से, लाइक इट्स ओनली अ रिपीट सेंटेंस, नोट द पैराग्राफ। लाइक सो सेंटेंस को रिपीट करने के लिए ऑब्वियसली देयर शुड बी नो पोज इन बिटवीन, राइट? तो दैट्स व्हाट आई डिड, जस्ट लिसन केयरफुली अगेन। When the demand of the course approached, the university department took an approach. Here is the sentence which was about the university and their demands. यहाँ पे मेरा फिर भी फंबल हुआ, बट मैंने कर दिया, तो उसको लगेगा कि कुछ बोल रहा है वर्ड, वो कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकता, ये आपके फीलर्स को समझ सकता है, ये आपकी फ्लुएंसी को समझ सकता है। सो दिस वाज लाइक आई गॉट 19 द इमेज, दैट वाज गुड। लेट मी चेक 77 in this. Let's check why I got 77. The given bar graph represents volunteers who incurred expenses reimbursement available. I can see different categories like postage, phone calls, meals, training, travel costs, and so on. The maximum part was covered by postage, which is approximately less than 40%. It is closely followed by others and phone calls, which is approximately 20%. Last but not least, I can see uniform, which is approximately over 10. I can see that this image was very much informative for me. Pause was not there, but like might be little of content that was not there. So that's okay. Like we got good in this. You can use any template. I didn't use any particular one. Like this was like retail lecture, I guess. So I got 77 only. Let me check again why. So still guys, I am very much happy कि मुझे 85 मिला, because it's checking the overall score. It's not checking only retail lecture, right? ये मेरे रीड अलाउड स्कोर, स्पीकिंग के डिस्क्राइब इमेजेस को, रिपीट सेंटेंसेस को, सबको नोट कर रहा है। ऐसे ही पूरा एग्जाम होता है। वो खाली स्पीकिंग देख के आपके 65 नहीं देगा या 85, वो चारों सेक्शंस को देख के ओवरऑल 85 देता है। उनको डिवाइड करता है या क्या करता है वो उसकी इच्छा है, आपको अपना बेस्ट देना है। यहाँ मेरा 77 आया, स्टिल आई गॉट 85। दो में 78 है, एक में 73 भी है रिपीट सेंटेंस में, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जस्ट give your best what's being told by your trainer, that don't stop in between, just take a little breathe on full stops and keep on speaking. That's it. The lecture was about the cloud formation, and the speaker firstly mentioned what do the cloud formation. I can hear that what do stick around and we cannot grow a cloud, he said. He also mentioned some key questions about like your ocean, sea salt, clouds, recall, and the chance of pollution. He also mentioned something about. So that was still good, but I must have not used wrong words. मेरे words थोड़े गलत हो रहे थे इसमें obviously, तो I will mend them next time. We'll do again. So this was good. 1 1। अब इसमें देखो मेरे आंसर्स कैसे थे। 3 times. 3 times. अब देखो उसने 2 बार 3 times. 3 टाइम सुना, उसमें से एक बार 3. उठा लेगा वो। ऐसे ही नेक्स्ट वन। What is the Natural. 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 अब देखो वो मेरा हल्का से नेचुरल भी उठाया, ध्यान से सुनेंगे। Natural. ये सुना आपको ये वाला साउंड? Natural. तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है वहां पे माइक, ध्यान रखना। और बीप जो आएगी आपकी सिर्फ वो रीड अलाउड्स एंड रिटेल लेक्चर में आती है, आई मीन डिस्क्राइब इमेज में। रिपीट सेंटेंस में कोई बीप नहीं होगी, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई बीप नहीं होगी। मेरा गलत था, यहाँ मैंने आंसर नहीं दिया था। How do you call a student that has finished his first year? ये मैंने रिपीट सेंटेंस की तरह रिपीट कर दिया, बट डोंट स्पीक एनी रॉन्ग आंसर और आई डोंट नो व्हाटएवर, डोंट डू दैट। So it's good, like still I've got good score that I wanted, but I was not expecting कि मेरा इतना आ जाएगा without उसके। तो you can guys can take little motivation, ठीक है ना? अगर आपके ट्रेनर के स्कोर आएंगे तभी आप लोग का आएगा ना, ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब ये मेरा जो था हमने ऐसे ही उठाया था, इसमें ग्रामर और वोकेबुलरी में हो गया, दैट हेल्प्स। गाइडिंग आना चाहिए, मैंने आपको खुद बताया था, या तो गाइड आएगा या गाइडिंग आएगा। हेल्प करता है गाइड करने में, गाइड्स प्रोफेशनल को नहीं, गाइड करने में प्रोफेशनल्स को, दैट्स ओके। बट एक नंबर इसने 0.75 मार्क्स काट लिए। अब ये मेरा ऐसे था, लाइक इसमें देखो मुझे अब आप ये खुद देखो राइटिंग में जो बोलते हैं मुझे, अभी हर्षित है नहीं यहाँ पे, बट आई मस्ट से कि बेसिकली सर मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा है, मैंने ये वाला ऐसे नहीं किया। अब मेरा 11.8 इस ऐसे में आ रहा है और 13.4 इसमें आ रहा है। समझने वाली बात है, ये मैंने खुद बनाया था, कोई टेम्पलेट नहीं था दोनों में। मतलब ये स्टार्टिंग का इस वाले में मैंने 2 लाइंस यूज करी थी टेम्पलेट की, अदरवाइज सारा ऐसे लाइक एक स्ट्रक्चर मेरे माइंड में है
कि ऐसे को कैसे बनाया जाता है। इंग्लिश मुझे आती है, स्पेलिंग्स मेरी ठीक है, अभी चेक करेंगे, शायद स्पेलिंग्स की गलती या ग्रामर की होगी, बट स्टिल व्हाई डिड आई गेट 85 और समथिंग लाइक लिसनिंग में, आई मीन राइटिंग में। सोचने वाली बात है, मैंने आपको बोला था। बट आप मेरी डिक्टेशंस देखना, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स देखना, और मोस्टली मेरे लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स देखना। अगर वो ज्यादा सही हुए ना तो ऑब्वियसली ये मैटर ही नहीं करता यार। आपके ऐसे का चाहे आप पूरा ब्लैंक भी छोड़ के आ जाओ, मुझे यही करना चाहिए था शायद आज, कि मुझे ऐसे करना ही नहीं चाहिए था एक। स्टिल मैं आपको दिखाता A75 वो कैसे आते हैं, राइट। मेक श्योर आपका टेम्पलेट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, गलतियां होंगी उसमें भी। देखो मेरी कंटेंट ठीक है, फॉर्म में मेरे 1 नंबर कट गया, बल्कि ग्रामर में मुझे 0.8 मिला है सिर्फ, स्पेलिंग्स ठीक है, मेरी वोकेबुलरी में 1 नंबर कटा है। बाकी मेरी जनरल लिंग्विस्टिक रेंज और डबल, आपको अगर ये 7 चीजें क्लियर है ना, 7 और 8 जितनी भी है ये चीजें भी क्या होता है ये, तो आपको स्कोर मतलब लाजमी मिलने वाला है इसमें। अब यहाँ पे द नहीं आएगा, दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग, द नहीं आएगा, द नहीं आएगा, फॉर इंस्टेंस यहाँ एन नहीं आएगा। देखो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, स्टिल मेरा 11.8, मतलब कितने नंबर काट लिए उसने। अगर ये भी पूरे मिलते तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 86 या 87 आ सकते थे। यहाँ पे डबल एन आना था, मैंने चेक नहीं किया। पार्शली सॉरी, स्पेलिंग ठीक है मे बी, लेट मी चेक पेरेनियली की स्पेलिंग क्या होती है। डबल एन ही होता है और मेरा गलत है स्टिल। उसने मुझे बताया कि पार्शली आ सकता है। सोशल सोशल सिचुएशन, द नहीं आएगा। आई हैड नोट पास्ट में आना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज, मतलब ये थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है अगर आप अपना टेम्पलेट बनाते हैं, बट बात वही है कि मैटर ही नहीं करता। आपको अपनी रीडिंग पे ध्यान देना है, आई मीन रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे। लेट्स गो ऑन टू, देखो स्पीकिंग में अगर हम बात करें, लाइक वाज रीड लाउड्स वर गुड, लाइक माय करेक्टनेस इज 90%, आई गॉट 28.3 एवरेज आउट ऑफ 31, लाइक 28.4 में से आई गॉट 25 पॉइंट इन लाइक रिपीट सेंटेंसेस, इमेजेस में 19.7, 8.1 एंड 3.2, so that all in all counts for like 84.9, that becomes 85. इन द राइटिंग सेक्शन व्हाट आई गॉट, लाइक राइट फ्रॉम डिक्टेशन अभी आएंगी, उसके बाद मैं राइट एसे की बात करूँ 16.1 में से मुझे 13.5 ओवरऑल, 2 एसेस का एक वो दिया है इसने टोटल करके। उसके बाद समराइज रिटन टेक्स्ट से 5.7 से 5.5, 5.1 आई गॉट लाइक, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द रीडिंग सेक्शन नाउ। सो इट्स 5 आउट ऑफ 5, गलत भी होंगे इसमें, देखना ऐसा नहीं है, ठीक है। स्कोर कम आया तो ऑब्वियसली मतलब गलत तो होगा ही, बट देखना है कि कौन सा गलत हुआ। लेट्स चेक, 4 आउट ऑफ 4, 5 में से 4, लेट्स चेक व्हाई। My answer scared, that was good. Danger, yeah, I was thinking of risk, but somebody said, Raju, are you there? No, Raju is not here. He said danger. I guess Raju or something like Vinay. He was there like with me in the physical class. He said danger. But कई बार होता है ना, स्टूडेंट का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, कहेंगे सर ने मेरा आंसर नहीं माना। So that's okay. Like we can get like 3 भी आए ना मेरे, I'm happy with that. That's okay. Because I'm aiming एक्सक्यूज मी for सर। 9. Yes. सर जो मतलब राइटिंग SS2 होता है, Hmm. अ, उसमें हम वो वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू ह्यूमन सोसाइटी वाला। डियर वैसे मेरे को लगता नहीं मेरी आवाज लेट आ रही होगी वहां पे, आ रही है ना? हाँ जी आ रही है सर, आपको आ रही है मेरी? मेरे को आ रही है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे का जो टेम्पलेट है मैटर ही नहीं करता। अभी बोला था ना, 5 मिनट हुए भी नहीं है बात को मैंने। हाँ जी हाँ तो सर। कोई भी लिखो, मेरा डजेंट मैटर, मतलब आपको बस कंटेंट उसके अंदर डालना है, एक आधी लाइन जो डाल सकते हो तो। APUनि में सर ऐसा होता है ना कि जो जिसकी स्टेटमेंट छोटी होती है, हम्म मैं इसमें मतलब कि इंट्रो पैराग्राफ में इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ और लास्ट वाले में। और हम्म। अगर स्टेटमेंट छोटी हो तो मैं मतलब 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ, तो उससे कंटेंट पूरा हो जाता है। तो आपने मतलब वो रियल मेरी उस एग्जाम दिन, में ऐसा कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। मेक श्योर आपकी डिक्टेशंस, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स गलत ना हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 75+ स्कोर आ जाएगा आपका, चाहे ऐसे ना भी करके हो। ओके सर, उसी में तो प्रॉब्लम है। ये डियर तभी तो कह रहा हूँ कि उस ऐसे में तो एटलीस्ट लाइंस खुद की बना के लिखो 2-3। मैंने क्यों लिखी आज लाइव क्लास के अंदर, इसीलिए तो लिखा है कि वहां पे 2-3 लाइंस जो मैं डाल रहा हूँ वो आप समझो कि फर्स्ट लाइन मेन आइडिया होता है, उसके बाद उसको सपोर्ट करना होता है किसी इन अदर वर्ड से, फिर एग्जाम्पल देना होता है, फिर ओवरऑल आपको तो केवल 2 ही लाइंस डालनी है, एक फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में, एक सेकंड में, थोड़ी सी बना के।
वो तो ओके इसमें सर। चल ही जाता है यार, इंग्लिश तो कोई बात नहीं है, दैट्स ओके। लाइक इसमें 4 आउट ऑफ 4, इसमें 2 कम है मेरे ध्यान से देखेंगे क्यों। convictions, it was convictions, my answer was convictions, it's good। undermined, okay, underestimated लिख दिया मैंने कि हमने पढ़ा नहीं था completely, हम तेज तेज कर रहे थे, but that's okay। in spite of गलत हो गया, वहां पे हमने because of लिखा है, this is in spite of, ये समझने वाला है थोड़ा सा, ये बाद में समझेंगे because this section जो ये चल रहा है अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें I cannot explain over here, like 2 of them were correct, मैं sure था। I guess you all were in the class except you, Rajendra ji, but B C E, like it was B and C, E भी आंसर था, ये हमने नहीं किया, that's okay। एक भी लगाएंगे तो चलेगा यार, यहाँ पे भी हमारे 2 सही थे, A C E आंसर था, ये 4 1 2 3 ठीक था हमारा, इसमें 2 गलत हो गए हमारे, 3 1 2 5 4 हमारा था, 3 1 2 4 5, ओके। अब देखो एक पेयर की वजह से 2 नंबर चले गए, तो दैट्स ओके, विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। दिस वन वाज करेक्ट, रीडिंग ब्लैंक्स तो आई गेस ठीक होने ही चाहिए मेरे। 4 आउट ऑफ 4, यस 4 5 5, गुड। सी एंड डी ये गलत हो गया हमारा, बट दैट्स ओके, ये वही था। आर्ट इज अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू एक्सप्लेन, नोबडी कैन एक्सप्लेन, दे आर सेइंग। हमारा आंसर डी था, इमोशंस वाला नहीं था, बट इट्स गुड। लाइक मोस्ट ऑफ देम इफ आई चेक इन रीडिंग सेक्शन, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर रीडिंग राइटिंग, मेरे 27 में से 23 नंबर हैं। रीड अलाउड से मुझे 21 नंबर 23 नंबर मिले, मैंने बताया था 25 से 30 में से आते हैं, तो मेरे जितने रीड अलाउड्स पढ़ने में वहां अच्छे होंगे, यहाँ पे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट रीडिंग में होगा आपका स्कोर। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स आई गॉट 89.9 में से कंप्लीट नंबर मेरा एक भी नहीं कटा। लिसनिंग के हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स मेरे सारे ठीक हैं, अभी आएंगे वो। रीडिंग के रीऑर्डर्स में मेरे 4.7 हैं। राइटिंग के अंदर रिटन टेक्स्ट से मुझे 4 से 5 नंबर मिलते हैं, सो दे आर लाइक अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। रीडिंग मल्टीपल चॉइस ठीक है अप्रोक्स। लिसनिंग के हाईलाइट करेक्ट समरी मेरी ठीक है, जहां जहां से नंबर आ रहा है रीडिंग में। देखो अब रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक मॉड्यूल से मार्क्स ले रहा है, रीडिंग से भी ले रहा है, स्पीकिंग से भी ले रहा है, लिसनिंग से भी ले रहा है, और इवन दो राइटिंग से भी ले रहा है। तो आपके राइटिंग आई मीन रीडिंग में स्कोर कम कैसे आ सकता है, सोचने वाली बात है। मेरे बैड भी थे इसमें, देखो 90% हमारा टारगेट है वैसे, क्योंकि जो इसमें सेट किया गया होगा आईडी में अनुजी के द्वारा, तो यहाँ पे मेरे 86 है, मैं उसमें फेल हो गया हूँ, बट स्टिल मेरे लिए इनफ है, राइट। यहाँ पे 90% था, मेरा 89.5 रहा, दैट्स ओके। सो इतना मार्क्स आपका कंट्रीब्यूट होता है, मतलब आउट ऑफ 94 अप्रोक्सीमेटली आई गॉट 85। सो लेट्स गो ऑन टू द लिसनिंग वन। इन लिसनिंग इफ आई सी लाइक माय स्पोकन टेक्स्ट जो मैंने खुद बनाया था, शायद गलती हो सकती है इसमें, नो इट वाज गुड। मेरी राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग नहीं है, फॉर्म मेरी ठीक है, वोकैबुलरी ठीक है, कंटेंट भी ठीक है। कंटेंट तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने उसी का ही लिखा था, ये मेरा कोई टेम्पलेट नहीं है, आप इसमें से पर टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे डैश वाज द मेन टॉपिक वेयर द स्पीकर स्टेटेड डैश, मोर ओवर डैश जो भी लाइन है, ऑल्सो इट शुड हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर रीडर्स टू बिल्ड एन इमोशनल, मतलब ये मैंने खुद की लाइंस बनाई थी, सो इट वाज गुड। उसके बाद ए डी आई वाज करेक्ट। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल लिसनिंग एक आंसर फिर भी नहीं था मेरा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग के, ये तो गलत नहीं होने चाहिए ऑब्वियसली। स्पेलिंग्स गाइस आपको ध्यान रखना, आपकी स्पेलिंग्स गलत ना हो बिल्कुल भी। 4 आउट ऑफ 4। एंड पास्ट का भी जैसे कंप्लेंट है और आपने कंप्लेन लिखा तो वो गलत हो जाएगा। प्रोफेशन है, प्रोफेशंस लिख रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गई मेरी स्पेलिंग, मैंने बोला था, मैंने कहा एच नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा है। हाइजीन रेस्पिरेटरी हमने लिखा रेस्पिरेटरी, बट ऑलमोस्ट ये वर्ड वो हमने गैस किया था RSV से आई गेस, बट स्टिल थोड़ा सा हिंट मिल ही जाता है। हाइजीन की तो बच गए हम, ये ठीक है हमारा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। गुड गुड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के तो नंबर मत ही खोना प्लीज, रीडिंग में नंबर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं आप देख सकते हो। लिसनिंग के हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 8 या 9 नंबर दे रहे हैं आपको, मतलब इनफ होते हैं यार, 2 नंबर बढ़ते हैं पीटी के। सो इट्स 6 आउट ऑफ 6। देन आई गॉट 5 आउट ऑफ 5। डिक्टेशंस यस इट शुड बी करेक्ट। अगर ये गलत हो गई ना गाइस, अपना राइटिंग और लिसनिंग का स्कोर भूल जाना। रीजन क्या देता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे
टास्क के अंदर आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, वोकैब, कंटेंट सब कुछ आता है। छोटा सा सेंटेंस है। अब कंप्यूटर का एआई इतना पागल भी नहीं है कि वो ये नहीं समझेगा कि आपको इंग्लिश का इतना छोटा सेंटेंस तो नहीं आता, बट आप इतना अच्छा ऐसे कैसे लिखा है, आपने टेम्पलेट तो ऐसा लिख दिया, मतलब उसको थोड़ी पता है आपने टेम्पलेट लिखा, वो तो आपको पता है। अगर उसको पता लग जाए वो आपको नंबर ही ना दे कभी भी चीटिंग चल रही है मेरे साथ। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके केस में बेसिकली डिक्टेशन सही होंगी तभी आपको राइटिंग का ओवरऑल स्कोर अच्छा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे लिटरली छोड़ के आ जाना, ठीक है। आप लोग 6-7 जने जितने भी हैं, अभी 4-5 लोग, ठीक है। मेरे लिए एक एग्जाम का पैसे का जुगाड़ करना, उसमें इकट्ठा करके मैं एक एग्जाम दे के आऊंगा जिसमें कोई ऐसे नहीं, क्योंकि मैं अपने पैसे पे रिस्क ले सकता हूँ बट बिना मतलब से नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए करके आऊंगा और दिखाऊंगा कि ऐसे का टेम्पलेट आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। और वट एवर ऐसे आई कैन लीव बट स्टिल आई कैन गेट 70 यार, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा हार खेल नहीं है इसमें, बिकॉज मोस्टली मार्क्स यहाँ से मिलते हैं 6। अब देखो उतने बड़े ऐसे के 15 नंबर और यहाँ पे इतनी सी लाइन के 9 नंबर, उसके नीचे देखना 10 नंबर, 19 तो यही बन गए 2 लाइन में। अब सोचो ना गधे वाली मेहनत और घोड़े वाली कहाँ पे होती है। ये 12 वर्ड्स की थी, मेरे 10 आए थे। रिसर्च, इन्वेस्टिगेट, ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ऑन द जेंडर एंड सोशल एटीट्यूड। स्टिल यहाँ पे भी गलती है, अगर मेरी ये गलती भी ना होती तो आई कुड हैव गोट 89 और समथिंग अप्रोक्सीमेटली 90, बट दैट्स ओके। तो 8 आउट ऑफ 8। तो अब देख लो डिक्टेशंस में 20 और 10 30 और 9 39, 39 मार्क्स आर गिवन इन द डिक्टेशन, इन योर राइटिंग एंड एज वेल एज इन योर लिसनिंग सेक्शन। मतलब दोनों में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मिलता है। लिसनिंग में डिक्टेशंस के मार्क्स देखेंगे कितने कंट्रीब्यूट किए हैं इसने। राइटिंग में देखते हैं पहले डिक्टेशंस के 26 नंबर थोड़े होते हैं यार। लिसनिंग के अंदर इसने डिक्टेशन में 23 नंबर। अब सोचो कि बेसिकली आपको मार्क्स ज्यादा कहाँ से मिल रहे हैं। अभी देखो ये क्या कह रहा है, स्पीकिंग के अंदर लिसनिंग, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस लिसनिंग, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है इतना ज्यादा, तो उसके मार्क्स दे ही नहीं रहा। एक एक 2-2 नंबर के हैं, बट वो भी गलत क्यों करने। तो मैक्सिमम आंसर्स आपके ठीक होने चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट लाइक दैट मच ऑफ स्कोर दैट यू वांट, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग लाइक हार्ड नट टू क्रैक, ऑब्वियसली इट्स एन इजी पीजी गेम जिसको बोलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पीटी करनी, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टास्क दैट यू आर नेवर गेटिंग बोर अगर आप समझ के करेंगे। रीडिंग जब करते हैं ना आप लोग तो रट्टा मार के करने की कोशिश करते हैं, रीडिंग को ट्राई करो कि समझ के करने की, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लेते हैं, हमारे पास 5 मिनट भी नहीं बचे, एक क्वेश्चन करके इस क्लास को एंड करते हैं आज। जीका, व्हाट इज दिस, थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। Zika is more pernicious than public health. You can add this word to your vocabulary. Pernicious is Pernicious. like having a very harmful effect on something, मतलब एक kind of negative sentence चल रहा है। Then public health officials, health की बात चल रही है। At present it is circulating in more than 50 countries. Zika कोई virus हो सकता है basically. And as of mid-May, 7 countries of territory have reported cases of microcephaly or other serious birth defects linked to the virus, which dash by mosquito, by से पहले थर्ड फॉर्म, which is transmitted। प्रेजेंट की बात चल रही है तो वॉज तो होगा नहीं, पास्ट में चलेगा ही नहीं, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है सारा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड ह्यूमन, इट कैन आल्सो हैव बी पास्ड फ्रॉम मदर टू फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्पाइट जीका's वास्ट डैश, यहाँ पे नाउन आना चाहिए बिकॉज इट्स अ प्रेपोजिशन। वास्ट, रेंज, एक्सटेंट, नंबर, डोमेन, over almost 70 years, there is little genetic difference among the various strains, according to an analysis by researchers at the University of Texas Medical Branch at Galveston. For example, the strain currently in the Americas and another previously detected in French Polynesia। अब कंट्रीज की बात कर रहा है तो मतलब वास्ट रेंज ही हो सकती है, जब दूर तक जा रहा है तो थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेन करंटली इन द अमेरिकन इन अनदर प्रीवियसली डिटेक्टेड, एलवाई के बाद मोस्टली ईडी आने के चांसेस होते हैं क्योंकि एडवर्ब अपनी मदर को फॉलो करती है जो कि एक वर्ब होती है। इन फ्रेंच पॉलिनीसिया आर प्रैक्टिकली डैश फ्रॉम, मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल फ्रॉम तो हो नहीं सकता। इनडिस्टिंग्विशेबल, ओड एंड डिफरेंट, दे ऑल आर सिमिलर। तो डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ओड, ओड फ्रॉम अदर नहीं लग रहा है, डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ग्रुप इन द व्हाइट बॉक्स। इफ द वायरस हैज चेंज्ड so little over time, why is it rearing its ugly head now? Scientists are not sure yet, but new experimental work in mosquitoes suggests that the virus was capable of detrimental death। तो ing ऑफ के बाद मोस्टली, yes, of shaping, no, of pressing, causing, making detrimental effect, of causing detrimental health effect। Detrimental are negative effects like Detrimental.
तो यू कैन एड इट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, detrimental आ जाता है बहुत बार. And outbreaks all along, therefore it is unlikely mutations enabled new abilities. Instead, public health officials probably did not understand, first form आ रही है did not के बाद past indefinite tense है, Zika's potential because the virus dash mostly in remote locations. अब ly लगा हुआ है तो verb आ सकती है, virus is found mostly in remote locations, ऐसा कुछ. yes, virus are circulated तो नहीं होगा, circulates रिसेंटली कह रहा है, मतलब हाल ही में, तो पास्ट में चलेगा, सर्कुलेटेड. डिड नॉट भी आ रहा है क्योंकि, तो आई एम श्योर अबाउट माई आंसर बिकॉज इट वॉज लाइक अप्रोक्सीमेटली ग्रामर. सो लेट्स चेक. It's one wrong. So which is okay, indistinguishable. So that's okay. Like otherwise grammar wale sahi the. So I guess that's all for today's meeting, guys. Because this is less than 1 minute, we can get disconnected anytime. So if you have any doubts, you can call me personally. I'll be there for you, and you can subscribe to my channel. I'll be sharing the link soon. Thank you so much for being in the meeting. Have a good day. Get PT exam booked at 13,700. Get PT classes at 200 day. Call +9185720675889.